خدا کے حضور میں ایک گیت گائیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. ہاللیلویا. سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، تو قدوس ہے، تو رحیم ہے، کوئی تجھ سا نہ، تو عظیم ہے، تو قدوس ہے، تو رحیم ہے، کوئی تجھ سا نہ، تو عظیم ہے، زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو، میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو، زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو، میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو، میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو. آمین. ہاللیلویا. دعا کریں گے آج کے ٹاپک کے لیے کہ خداوند اپنی بندی کو استعمال کرے تاکہ وہ ہمیں صحیح طور پر سکھا سکیں. تو ہم پاسٹر صدیق صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. اپنا مائک آن کر لیں. یسوع مسیح میں بزرگ آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آپ کی تعظیم، آپ کی ستائش کرتے ہیں. یقیناً آپ جلال سے بھرے اور قدرت سے معمور خداوند ہے. آپ رحم اور ترس سے بھرے ہوئے خدا عظیم خدا ہے. آپ کہہ کرنے میں دھیمے اور شفقت میں غنی خدا ہے. وعدے میں سچے اور قابل مطلق، آپ کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. آپ انسان ہی کے جھوٹ بولے اور نہ ہی آپ آدم ساتھ کے اپنے وعدہ سے پھر جائیں، بلکہ آپ صادق القول ہیں. ہم زمین تک جھک کر مالک آپ کو سجدہ کرتے ہیں. آج دن بھر کی خدا مہربانیوں کے لیے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ کے فاٹکوں میں آتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خداوند آج شام آپ پھر سے آپ نے ہمیں باہم اکٹھا کیا تاکہ ہم اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے خداوند تیرے منہ کی باتوں کو سیکھ سکیں. اور خدا آج جو بھی پروگرام ہے، جو بھی ٹاپک رکھا گیا ہے، خداوند اس ٹاپک کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں مالک. اور جو بھی آپ کا خداوند آپ کی بندی، آپ کا بندہ بولنے والا ہے، خداوند اس کی رہنمائی کرنا، مدد کرنا، معاوضت کرنا، اسے چھونا ابھی سے اس بات کے لیے تیار کرنا تاکہ خداوند آج کے سارے پروگرام کے وسیلہ سے جلال آپ کے بیٹے یسوع مسیح کو ملے. چھوڑ برکت دے، مسیح کا نام لے کر مانگتے ہیں، آمین. 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 آمین.
چلے ماریا آپ کوشچن کریں تو وہ پھر آپ جی چھوٹے چھوٹے جی کوشچن اور چھوٹے چھوٹے آنسر ہوں تاکہ اس طرح سے کوشچنس جی کوشچنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائبٹیز یا ذیابیطس کے بارے میں. تو ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کیونکہ بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگ دنیا میں اس کا شکار ہیں. تو ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے آنٹی نصرت کے وسیلے سے کہ خدا نے ان کے اندر جو نالج رکھا ہے، جو وہ جانتی ہیں اس کے بارے میں، وہ ہمیں سکھا سکیں. تو آنٹی جی سے میں ان کو خوش آمدید کہوں گی کہ وہ آئیں اور اس کے بارے میں بات کریں. تو ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ذیابیطس یا ڈائبٹیز کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. تھینک یو ماریا. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلام. خدا آپ سب کے ساتھ تو ہم سب کو برکت دے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈائبٹیز ملائٹس. ابھی ماریا نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس سے مطلب افیکٹڈ ہیں. تو first I will say in English, then I will translate in Urdu. So what is diabetes? Diabetes, first I'd say, in the worldwide, پوری دنیا میں almost جو ہے نا 400 سے زیادہ ملین لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری کا شکار ہیں. یہ ایک کنڈیشن ہے. اور diabetes is also called diabetes mellitus, which is the group of diseases that result in too much sugar in your blood. کہ یہ جو ڈائبٹیز ملائٹس ہے، ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز کی اسپیلنگ ہے DIABETES، ملائٹس کے MELLITIS. سو یہ ڈائبٹیز ملائٹس جو ہے یہ ہمارے مطلب ایک قسم کی جو ڈیزیز ہے. I always call it a damaging beast in our body, which can destroy our vital organs in our bodies. Especially its effect on all the organs in our body, especially our eyes, our skins, our lungs, our kidneys, our heart. It can destroy you entire body, because the blood sugar, which is a very important nutrient, the sugar is very important for our body, which is the energy of our body, because our body runs and our body needs the foods, and the foods when we eat it, foods breaks into the glucose, which is called a carbohydrates, glucose, glycogen. So this energy keeps our body alive. So our body cells need this energy. So how our body cells need our energy? Because we have all the body muscles need the energy. So how many muscle we have in a body? Let's talk about the body. Our body is basically building the muscles or cells, and it's a building block of living things, which is our living cells need nutrition, need a food, need a energy to run our body. So when this food break into the sugar and digested, break and goes into the blood, sugar goes into the blood, go into the muscle. So when it's go into the muscles, and the muscles itself not enter into the muscle, there's a key which open up the muscle, then this blood sugars, the energy goes into the muscle for our body to utilize it. So this where this key comes from, let's talk about this key, which is called insulin. Where this insulin comes from? We have a pancreas, which is our, in Punjabi hum usko pitta kehte hain. وہ جو پتا ہے اس میں ایک سیل ہے جو ہارمون ریلیز کرتا ہے. وہ ہارمونز جو اس کو انسولین کہتے ہیں. جو انسولین ہے وہ ایک کی ہے جو سیل کو اوپن کرتی ہے. جب وہ سیل کو اوپن کرتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے نا, مطلب وہ جو فوڈ ہے, جو نیوٹریشن ہے, کاربوہائیڈریٹس ہے, شوگر ہے, وہ جب ہمارے سیل میں پھر اسی طریقے سے انٹر ہوتی ہے. جیسے آپ
अंदाजा करें कि एक गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। ये जो शुगर है, ये जो एनर्जी है, ये हमारा बॉडी का फ्यूल है, हमारी न्यूट्रिशन है, ये हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है क्योंकि हम खुराक के ज़रिए खाते हैं। लेकिन इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि हमारे ब्लड वेसल जो है ना, वो सारा फूड जो है ना, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है ना, वो सारा फूड हमारी पूरी बॉडी को लेकर जाते हैं। तो जब और इसकी वजूहात क्या होती है कि ये ब्लड शुगर जो है ना, क्यों हाई हो जाती है हमारे ब्लड में में शुगर का लेवल हाई इसलिए हो जाता है कि वो जो इंसुलिन है ना, वो किसी तरीके से हमारी बॉडी जो है ना, उसमें कोई अफेक्ट होता है। हमारा जो ऑटोइम्यून सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी मतलब फंक्शनल सिस्टम बॉडी का जो है ना, वो अफेक्ट करता है उसको, हमारे पैंक्रियास को, जो उस सेल को किसी तरीके से वो ब्लॉकेज कर देता है। उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी डिजीजेस भी अफेक्ट करती हैं उसको। कभी मे बी उसको जो पैंक्रियाज है उसमें मतलब उसको उसके मसल पे अफेक्ट हो गया, उसको स्कार हो गया, कैंसर हो गया, ब्लॉकेज हो गई है। बहुत सारी वजूहात हैं जिससे डायबिटीज होती है। और इसकी दूसरी वजूहात की वजह से होती है जो हमारी बॉडी पे अफेक्ट करती हैं। उसमें हाई ब्लड शुगर्स, और हाई ब्लड शुगर की काज जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कोई और बीमारी भी हो सकती है। और उसका ये भी हो सकता है कि अगर हम कोई चीज़ मतलब कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई इन्फेक्शन है जिसमें, या किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है, वो जाके फिर पित्ते पे या लिवर पे अफेक्ट करता है, तो पैंक्रियास पे अफेक्ट करता है। तो उसकी वजह से जो है ना, वो इंसुलिन जो है ना, क्योंकि इंसुलिन ही जो है वो ब्लड शुगर को मेंटेन रखती है हमारी बॉडी में। तो जब वो किसी वजह से भी अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई भी वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से ये जो ब्लड शुगर जो है ना, वो मसल्स में नहीं जाती, तो वो जो है ना, वो ब्लड में ही रहती है, तो वो उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है। तो कभी कभी हमारा अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना, हम उनको डिफीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से वो उस पर प्रॉब्लम हो जाती है। यही वजह है कि वो जो ब्लड शुगर जो है ना, हाई हो जाती है। अब ब्लड शुगर की दो से तीन किस्में हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज, फिर उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज, फिर एक डायबिटीज है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को होती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है क्योंकि जो बच्चा अंदर होता है उसको मतलब वो उसको जो न्यूट्रिशन है वो शुगर की वजह से मिलती होती है। तो किसी तरीके से ऐसा होता है कि भी हार्मोन्स की वजह से, एक्सेसिव हार्मोन की वजह से ये होता है कि भी वो इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन जो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो अब हम टाइप 1 के लिए, टाइप 1 को हम करते हैं कि टाइप 1 क्या है। टाइप 1 डायबिटीज जो है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। उसमें ये कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज प्रीवियसली नोन एज ए जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल मीन लाइक जो यंग बच्चे होते हैं, जो मतलब 38 से कम बच्चे होते हैं, जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, उनको होती है। उनको इस तरह होती है कि वो कहता है कि 5% people who have diabetes have type 1 diabetes or insulin dependent diabetes. Type 1 diabetes has also been called juvenile diabetes because I already said, because it is usually develops in a children and teenager, but people of all ages can develop type 1 diabetes too. एज 30 कम से जो बच्चे होते हैं, सारे बच्चे पैदाइशी, उनको भी डायबिटीज होती है। कभी कभी वो हेरिडिटरी होती है, माँ बाप की वजह से होती है। कभी वो बच्चा जो है ना, उसका जो पैंक्रियास है जो है ना, वो सही डेवलप नहीं हुआ होता, या उस पर कोई ऐसी प्रॉब्लम शुरू में, अगर कोई रोमेटिक फीवर हो, बचपन में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से वो डाउन द रोड जो है ना, इन चीज़ों पे अफेक्ट करते हैं। और बहुत सारी वजूहात है, अब मेरे पास इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ कि वो कहता है कि भी टाइप 1 डायबिटीज बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ आइलेट्स। जो इंसुलिन पैंक्रियास का जो सेल है, मसल है, जो इंसुलिन इंक्रीज करता है, जो हार्मोन इंक्रीज करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव है। तो ये इंसुलिन हार्मोन्स जो है ना, वो पित्ते की जो एक मसल है जिसका नाम है आइलेट्स, वो प्रोड्यूस करता है।
तो जब उस पे कोई इफेक्ट होता है, मैंने पहले बताया उसकी वजह से, तो वो कहता है कि the islet cell sense glucose in the blood and the products the right amount of the insulin to normalize blood sugar. कहता है कि भी जो हमारी इंसुलिन है वो उसका काम है कि वो हमारी ब्लड शुगर को पूरी बॉडी में रेगुलेट करे। तो जब वो नहीं कर सकती तो इस तरह हमारी ब्लड शुगर जो है ना हाई हो जाती है। इस तरह फिर वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसकी वजह से भी होती हैं। But once the insulin producing cell is destroyed, a person can no longer produce their own insulin. Without insulin, there is no key. वो की किसको कह रहा है कि इंसुलिन को वो की कह रहा है। अब हमारी कोई भी चीज को खोलने के लिए की होती है, हमारे बॉडी को सेल खोलने के लिए जो की है वो इंसुलिन है। जब वो इंसुलिन जो है ना वो है ही नहीं है बॉडी में तो सेल किस तरह खुलेंगे? तो सेल नहीं खुलते तो जो ब्लड शुगर है वो ब्लड वेसल्स में ही रहती है, वो बॉडी में जाती नहीं है। तो इसलिए जब हम ब्लड शुगर चेक करते हैं तो हमारी ब्लड शुगर हाई होती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसकी वार्निंग सिम्टम्स क्या है, जो इसकी काज आपको क्या इसके साइन सिम्टम है, कैसे आपको पता चलता है कि टाइप 1 डायबिटीज हो गई है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जो कि ओवर 30 एज से जो लोग होते हैं जिनको इंसुलिन जो है ना मतलब उनकी बॉडी थोड़ी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो बॉडी को है ना उसको इंसुलिन को खुद ही पता नहीं चलता है कि उसने किस तरह बॉडी में जाना होता है, वो टाइप 2 डायबिटीज है। What are the warning signs and symptoms of the type 1 diabetes? कहता है onset of type 1 diabetes happens very quickly. The following symptoms may appear suddenly and are too severe to overlook. क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में आपको पता चल जाता है, लेकिन वो कहता है कि इंक्रीज यूरिनेशन, उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, आपको यूरिन बार बार आता है, जैसे कहते हैं इंक्रीज थ्रस्ट, इंक्रीज यूरिनेशन इन योर बॉडी। बच्चों में इस तरह होता है कि जब बच्चे सोए होते हैं वो बेड करते हैं। ये होता है कि जो बड़े होते हैं कि वो यूरिन करने जाते हैं तो यूरिन करने जाने से पहले ही उनका यूरिन निकल जाता है, तो बार बार उनको फीलिंग होती है, अर्जेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि मुझे मतलब मैंने यूरिन करने जाना है। फिर उनको बहुत उनका मतलब जो रैपिड वेट जो है ना लॉस हो जाता है, क्योंकि उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है शुगर की वजह से। उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो बहुत ज्यादा वीक महसूस करते हैं, उनको हर वक्त थकावट रहती है। ये सिम्टम्स हैं। और यूजुअली आपको आपके जिस्म में बेचैनी होती है, आपकी सोच में भी बेचैनी होती है, आपको इरिटेबिलिटी होती है, आपको गुस्सा आता है, कोई भी आपके कुछ से बात कर रहा होता है तो आपको एकदम गुस्सा आता है। और फिर इसके बाद ये होता है कि आपकी नज़र भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो इसका सीवियर सिम्टम्स ये है कि आपको नौजिया भी होता है, वॉमिटिंग होती है, आपके जिस स्टमक में ज़ोर से शिद्दत से पेन होती है। तो आपके तीसरा जो सिम्टम्स है वो आपके जो मुंह है ना, मुंह से स्मेल आती है कि नॉर्मल स्मेल नहीं होती। दूसरा बंदा दूर से भी महसूस कर लेता है कि आपकी स्मेल जो है ना वो ठीक नहीं है। इससे अंदाजा हो जाता है कि ब्लड शुगर जो है ना आपके जिस्म में हाई है। फिर आपको इच्ची होती है, स्किन में आपको इच्ची होती है, रैश होते हैं। तो ये इसके टाइप 1 के मतलब साइन सिम्टम्स हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में मतलब शुगर लेवल जो है ना हाई है, कि हमारा जो पित्ता है, इंसुलिन है, वो रिलीज नहीं हो रही किसी वजह से कि वो ब्लड शुगर को मेंटेन करे बॉडी में। ये मतलब ये जरूरी नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है, लाइफ के किसी भी हिस्से में किसी को भी हो सकती है। क्योंकि मतलब ये एक ऐसी बीमारी है कि इसका होना जरूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म को खुराक की जरूरत है। खुराक जो है ना वो जो ब्रेक डाउन होती है वो ग्लूकोज की सूरत में ब्रेक डाउन होके तो हमारे जिस्म का एनर्जी हिस्सा बन के तो हमारा जिस्म जो है ना यूटिलाइज करता है, हमारे जिस्म के सेल्स को वो अलाइव रखता है ताकि हम जो है ना काम कर सकें। क्योंकि जब हमारे में एनर्जी नहीं, हमारी एनर्जी तो सारी खुराक से आती है, वो सारी खुराक जो ब्रेक डाउन होती है वो शुगर की सूरत में ब्लड में दाखिल होकर फिर हमारे मसल्स में जाती है। तो ये है कि टाइप 2 डायबिटीज कहता है कि अभी मैं टाइप 2 पे भी थोड़ी सी बात करूं कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डायबिटीज इज कॉल्ड इन द टाइप 2 डायबिटीज इज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। पहली टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ये जो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तो 95% पीपल विद द टाइप 2 डायबिटीज, द टाइप 2 डायबिटीज आल्सो कॉल्ड adult onset diabetes, which is I said over 30 जो लोग होते हैं उनको adults कहते हैं।
ओवर 30 से जो होते हैं उनको जुवेनाइल्स कहते हैं। तो जो ओवर 30 लोगों को, ओवर 30 एज और 35 एज से ओवर जो लोग होते हैं उनको ये होती है। वो कहता है कि भी since it's typically develops after age 35, however a growing number of the younger people are now developing type 2 diabetes too। क्योंकि अब हमारे इस वक्त जो हम वो कह रहा है कि इस वक्त जो दौर चल रहा है, जो खुराक है, जो भी है, स्ट्रेस है, और इसके और भी फैक्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब और इसके हम काजेस भी देखते हैं कि इसके काजेस को भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो वो कहता है कि भी however growing number of the younger people are now developing type 2 diabetes, people with the type 2 diabetes are able to produce some of their insulin, often it is not enough। कुछ तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन कभी मतलब इतनी इनफ नहीं होती कि वो हमारे ब्लड शुगर को लेवल कर सके जिस्म में एंड हमारे ब्लड वेसल्स में। And sometimes the insulin will try to serve as the key to open the body cells to allow the glucose to enter, which is the energy। वो कह रहा है कि लेकिन वो नहीं हो सकता, but the key won't work। मतलब कि इंसुलिन वर्क नहीं करती, फिर वो जो इंसुलिन जो है ना वो रेजिस्ट कर जाती है, वो बैकअप हो जाती है, इसीलिए फिर जो है ना वो मतलब कोई ऐसी वजह होती है किसी चीज उस पर इंसुलिन पे कोई इफेक्ट हुआ होता है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है। फिर कहता है कि भी वो बॉडी सेल में एंटर ओपन करने को नहीं कर सकती। तो दिस इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज, टिपिकली टाइड टू पीपल्स हु आर ओवरवेट। ये जो लोग ओवरवेट हैं उनको होती है, और जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि जो लोग जो ना मतलब इनएक्टिव होते हैं, जो कि खाते पीते हैं लेकिन लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तो उनको ये होती है, सडनली ऑनसेट होती है। ये किसी वक्त भी हो सकती है, इसका ये बताती नहीं है, ये कब भी हो सकती है। इसीलिए हमारे बॉडी को मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत होती है कि हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है कि हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें मतलब कि खुराक खाइए, वॉक करना चाहिए। 30 डॉक्टर कहते हैं 30-40 मिनट्स हमें वॉक करनी चाहिए खाने के बाद। फिर जो बहुत सारे स्ट्रेस भी हैं वो भी इंसुलिन ये भी प्रॉब्लम काज करते हैं। यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ ऑल दीज phrases that the same the lifestyle with a lot of sitting, and like I said, it's people who are inactive and doesn't do too much exercise and they stay laying after eating and they stay seated, it causes those people are type 2 diabetes। इसके warning symptoms क्या है कि अब हमें इससे किस तरह पता चलता है कि हमें इसको मतलब क्या होता है जब हमारे जिस्म में ये जो मतलब टाइप 2 डायबिटीज होती है हमें, तो हमारे जिस्म को क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सिम्टम इसके टाइप 2 डायबिटीज सिमिलर टू दोज ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज, बट द onset of the type 2 diabetes is usually slower and the symptoms are not unnoticeable। वो कहता है कि भी जिस्म के इस टाइप 2 डायबिटीज में जो है ना वो जिस्म को कोई भी साइन सिम्टम्स कोई वार्निंग नहीं देता। टाइप 1 में तो वार्निंग दे देता है कि आपको यूरिन ज्यादा आता है, भूख बहुत लगती है, गुस्सा आता है, आपको इरिटेबिलिटी होती है, आपको पसीना आता है, आपको यूरिन, और फिर आपको प्यास बहुत लगती है, ये सिम्टम्स हैं। आपको मतलब आप पानी पीते हैं तो आपका मुंह ड्राई रहता है, आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू होती है, किस्म का फाउल ओडर सा होता है आपके मुंह में। लेकिन टाइप 2 में जो थोड़े से सिम्टम्स होते हैं लेकिन अननोटिसेबल होते हैं, तो इसके जो वार्निंग्स मतलब द वार्निंग साइन दे आल्सो माइट थिंक दैट द सिम्टम्स आर द साइन ऑफ द अदर कंडीशन लाइक एजिंग, overworking or hot weather। So ये क्या कह रहे okay, type 1 diabetes, for these reasons many people mistakenly overlook the warning signs, they also might think that the symptoms are the sign of the other conditions। तो वो कह रहा है कि इसका हमें कोई पता नहीं चलता, तो वो ये समझते हैं कि शायद किसी और वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, किसी और प्रॉब्लम से हो रहे हैं मुझे ये सिम्टम्स। हाँ, तो ये जो ना ये एक किस्म का धोखा होता है, बंदे को धोखा देता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज है। तो सब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली प्रॉब्लम डायबिटीज शुरू होती है, फिर उसके बाद मतलब जैसे ही आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, हाइपरटेंशन, आपको आप ये अंदाजा कर लो कि अब नेक्स्ट आपको अगर आप इन दो चीजों को कंट्रोल नहीं करोगे तो डायबिटीज डेफिनेटली आप पे वो तीसरी ऐड हो जाएगी इसमें।
तो ये तीनों चीजें जो है ना एक मतलब ये डायबिटीज इन तीनों के बाद आती है, इसलिए डॉक्टर जो होते हैं प्री उसको कहते हैं प्रिवेंशन, अर्ली प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन। तो डॉक्टर जो है ना वो फिर स्क्रीनिंग करते हैं यहाँ के आपके, कि उसको क्लोजली आपको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि मतलब आपको आप रिस्क पे हैं कि आपको डायबिटीज जो है ना डेफिनेटली होगी। तो ये दोनों चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और हम इनको खुराक से और इनको मतलब बहुत सारे हमारे पास इसकी थेरेपीज हैं जिससे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम ये जो है ना ये खत्म नहीं हो सकती, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं इन चीजों को। तो काजेस क्या है डायबिटीज की? द काजेस ऑफ डायबिटीज अननोन फॉर फॉलोइंग, जो डॉक्टर की स्टडी शो करती है कि किन रीजन से वो हो सकती है, तो इनकी काजेस तो अननोन है। डेफिनेटली शुगर हमारे जिस्म का हिस्सा है, एनर्जी है, उसको मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। जब इंसुलिन नहीं बनती, इनफ नहीं बनती या बननी बंद हो जाती है किसी वजह से, तो फिर हमारे जिस्म में ब्लड शुगर जो है ना हाई होना शुरू हो जाती है। सो द फैक्टर्स इसमें ये है कि फैक्टर्स इसके क्या है, मतलब काजेस इसके क्या है, इसकी वजूहात क्या है, कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज है, या मतलब पर्सनल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री और डाइजेशन, जो औरतें जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाती है, वो प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद उनकी मतलब डायबिटीज ठीक हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भी ये ठीक होगी नहीं होगी, वो क्योंकि वो रिस्की होती है कि डाउन द रोड यू विल डेवलप अ डायबिटीज, even though you were okay after the pregnancy and your diabetes was controlled, but then you are on the road onto the risk to develop the diabetes in the future. और जो किन लोगों में ज्यादा ये होती है, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक, नेटिव अमेरिकन, एशियन अमेरिकन रेस, पैसिफिक आइसलैंडर और एथनिक बैकग्राउंड। ये किसी भी एशियन बैकग्राउंड में होती है, एशियन अमेरिकन में होती है, अमेरिकन में होती है, अफ्रीकन में होती है, मतलब बहुत सारे हिस्से जहाँ से होती है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर होते हैं, स्ट्रेसफुल वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, अपना ख्याल भी नहीं रखते, खाते पीते हैं और फिर एक्सरसाइज नहीं करते, इनएक्टिव रहते हैं, तो ये हो जाती है। और दूसरी इसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि भी मतलब जब हमारे जिस्म में अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, हमारे पित्ते पे इफेक्ट होता है, जिसपे इंजरी टू द पैंक्रियास विच इज हमारा पित्ता है, उसकी कोई इंजरी हो गई है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस पर हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम जो है ना वो अटैक करता है। जब ऑटोइम्यून जो है ना वो कोई चीज़ वायरस से फाइट नहीं कर सकता, तो वो फिर वो जो मतलब हमारा अपनी बॉडी का जो हमारा मतलब फंक्शन सिस्टम है, वो जो ना हमारी अपनी ही बॉडी के सेल पे अफेक्ट करता है। तो उसमें हो सकता है कि भी कोई ट्यूमर हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या सर्जरी हुई है, सर्जरी भी हो, या एक्सीडेंट हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर उसकी वजूहात और भी है। ऑटोइम्यून सिस्टम मैंने अभी बताया कि हमारा अपना ही बॉडी सिस्टम जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का है, वो मतलब जो वायरस होते हैं हमारे जिस्म में, वायरस और बैक्टीरिया, जो अच्छे वायरस बैक्टीरिया होते हैं हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म को जो अच्छे मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो जो है ना कोई दूसरा आ जाए वायरस उसमें ऐड हो जाए, तो फिर वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकता। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, वो जो है ना उसको मतलब उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। इसलिए और उसकी वजूहात ये है कि हमारे ऑटोइम्यून सिस्टम में ये कौन सी वजूहात हैं कि जो हमें आर्थराइटिस होता है, रोमाटाइड आर्थराइटिस होता है, जो हमारे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है, ये ऑटोइम्यून डिजीज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि एज फैक्टर भी जो है ना वो भी काज करता है। पहले तो कहते हैं कि भी एज मतलब ये टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 जो है ना ये जुवेनाइल डायबिटीज है, जो बच्चों की है, जो टाइप 2 है वो बड़ों की है। लेकिन जो इसकी दो और भी इसमें डिफरेंशिएट है कि टाइप 1 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है, कि आपको इंसुलिन ही पड़ती है सारी जिंदगी, और टाइप 2 में आपको गोलियां खानी पड़ती हैं, उसमें थोड़ी सी आपको इंसुलिन उस सूरत में मिलती है कि जब आपकी कोई सर्जरी हो या कोई आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, जैसे फिजिकल स्ट्रेस भी है उसकी वजह से, और जो हम कुछ ऐसी मेडिकेशन खा रहे हैं, जैसे एस्मा के पेशेंट हैं वो स्टीरॉइड्स खाते हैं, जैसे प्रेडनिसोन है, जब हम प्रेडनिसोन खाते हैं या किसी किस्म का भी स्टीरॉइड खाते हैं, तो उससे भी हमारी ब्लड शुगर जो है ना वो हाई चली जाती है।
تو اور اسموکنگ اور اس کے اگر ہمارے اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں جو رسکی ہیں جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر ہے اور آپ کا جو کولیسٹرول ہائی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بھی کاز کرتا ہے ڈائبٹیز. اگر آپ اسموک کر رہے ہیں, اگر آپ اوور ویٹ ہیں, تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں تو it is important to know that the sugar itself does not cause diabetes. وہ کہہ رہا ہے کہ بھی ہمارے جسم میں جو ظاہر ہے ہماری باڈی کی انرجی شوگر ہے, تو جو شوگر ہے وہ ہم مطلب اپنے آپ ہی ہمارے بلڈ لیول کو ہائی نہیں کر دیتی ہے, اپنا شوگر کا لیول نہیں ہو جاتا. اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ شوگر بھی کھائیں تو بھی آپ پہ افیکٹ نہیں ہوتا. وہ اور اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں کرتا, لیکن وہ ایک کاز ضرور کرتا ہے کہ آپ کے ٹوتھ جو ہے نا وہ ڈیکے ہو جاتے ہیں, کہ آپ کے ڈسکلریشن آ جاتی ہے, آپ کے ٹوتھ پہ پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, تھوڑے مطلب پیلے پیلے ٹوتھ ہو جاتے ہیں. But it does not cause a diabetes even though you eat a lot of sugar. If your pitta, اگر آپ کا پینکریاس جو انسولین سے سکریٹ کر رہا ہے. تو ابھی جب میں نے بتایا کہ جیسٹیشنل ڈائبٹیز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ان عورتوں کو ہوتی ہے پریگننسی کے دوران ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو ان کے ہارمونز چینجز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ انسولین جو ہے نا وہ اس پہ ایکشن پہ افیکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو ہوتی ہے, تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اور موسٹلی یہ مطلب جو عورتیں اوور 35 ایئر اولڈ کے ایج کے بعد ان کو پریگننسی ہوتی ہے, ان کو زیادہ چانسز ہیں ڈائبٹیز, جیسٹیشنل ڈائبٹیز ہونے کے, یا وہ اوور ویٹ ہے یا ان کی مطلب فیملی میں کوئی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی, تو پھر اس عورت کو جو مطلب اس کو پریگننٹ ہے اوور 35 ایج میں, اس کو چانسز ہیں کہ بھی اس کے بلڈ شوگر جو ہے نا وہ ہائی ہو جائے گی ڈیفینیٹلی. جیسے ہماری فیملی میں میری مدر کو, تو میری مدر کی سائڈ پہ ڈائبٹیز ہے, تو ان کو تھی, ان کی ڈیتھ بھی اس طرح ہوئی, پھر ان کے بعد ہائپر ٹینشن, پھر ان کو اسٹروک ہو گیا, تو وہ بلڈ شوگر نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے ان کو اسٹروک ہو گیا, تو ان کے بعد پھر وہ ینگ ایج میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ڈائبٹیز کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈائگنوز ڈائبٹیز. سو there's a three way to diagnose the diabetes. First one, they check your fasting blood sugar. The fasting blood sugar, they say the fasting blood sugar are test performed after you have not had eaten for 8 hours. You have to be nothing by mouth at least 8 hours before they check your blood sugar level. سو فاسٹنگ بلڈ شوگر کا جو نارمل لیولز ہے وہ مطلب کہتے ہیں کہ بھی اسٹڈی شو کرتی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ بھی 70 سے, کچھ کہتے ہیں 80 سے, لیکن موسٹلی اٹس لائک واٹ ایور از بلو 100. آپ کی جو فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول اگر بلو 100 ہے, دیٹ مین یو ہیو اے نارمل بلڈ شوگر. جیسے کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر, جیسے کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا, 8 گھنٹے سے آپ نے کچھ نہیں کھایا, تو آپ کا جو ٹیسٹ, اور اگر یہ دو دفعہ آپ کا اگر نارمل ہو, بلو 100 ہو, تو آپ کی بلڈ شوگر نارمل ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ 100 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر. اس کے 2 یونٹ یوز ہوتے ہیں. ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس کو ملی گرام پر ڈیسیلیٹر کہتے ہیں, لیکن کینیڈا میں اس کو مول, ملی میٹر مولز پر ڈیسیلیٹر کہتے ہیں. تو یہ جو یونٹ ہیں میتھمیٹک یونٹ یوز ہوتے ہیں ہمارے نا. تو اگر آپ کی بلڈ شوگر 100 ملی گرام بلو 100 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر ہے, تو اس کا مطلب فاسٹنگ بلڈ شوگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو 2 دفعہ ٹیسٹ, 2 ڈفرینٹ ٹائم پہ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. اب جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ ہم مطلب اس کو A1C کہتے ہیں. A1C جو گلائکیٹڈ ہیموگلوبن ٹیسٹ, A1C جو ہے یہ آپ اس کو آپ کے لیے آپ کو فاسٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو بلڈ لیول جو ہے نا وہ 2 ٹائم پہ آپ کو ڈفرینٹ ٹائم پہ کروانا پڑتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ A1C جو ٹیسٹ ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پچھلے 3 ماہ میں آپ کے جسم میں کتنی شوگر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ percentage measure how much sugar is attached to the blood's hemoglobin proteins. جو ہماری جو پروٹین ہے اس کے مطلب اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں. تو وہ کس طرح نکالتے ہیں کہ یہ مطلب فاسٹنگ بلڈ شوگر, رینڈم بلڈ شوگر, تو آپ کو ڈیلی آپ کا پتہ چلتا ہے نا کہ آج صبح میری یہ بلڈ شوگر تھی, آج دوپہر کو میری یہ. لیکن جو A1C ہے گلائکیٹڈ ہیموگلوبن ٹیسٹ جو ہے, یہ آپ کو جو پاسٹ 3 منتھ آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے بلڈ میں بتاتے ہیں کہ آپ کے بلڈ شوگر کا لیول پچھلے 3 مہینے سے یہ چل رہا ہے.
उसको A1C टेस्ट कहते हैं। फिर तीसरा टेस्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट जो होता है ना, वो खाने के बाद, अगर आप, वो फास्टिंग नहीं होता, खाने के बाद आप करते हैं, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि जो A1C है उसका, मैं जाके नीचे आपको बताऊंगी कि इनका नॉर्मल और अब नॉर्मल और प्री डायबिटीज इनकी मतलब फिगर्स क्या है। सो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट वो जो आप खाने के बाद करते हैं, दोपहर में, मतलब कुछ खा पी के आप करते हैं, अगर वो आपका ओवर 200 है, दैट मीन यू नो इट्स यू हैव अ डायबिटीज। तो उसके बाद फिर एक चौथा टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आपके जिस्म, आपको टेस्ट करने के लिए कि आपका जिस्म किस तरह रिएक्ट करता है, वो आपको बहुत ज्यादा शुगर ड्रिंक्स देते हैं। मतलब एप्पल जूस में आपको या ऑरेंज जूस में आपको चीनी डाल के वो पिलाते हैं, तो उसके फौरन बाद आपका टेस्ट करते हैं 20 मिनट बाद जो भी है, तो वो देखते हैं कि मतलब इतनी शुगर लेने के बाद आपका बॉडी जो है ना उसने क्या रिएक्ट किया है, तो उससे फिर वो आपको उसका और मतलब चेक करते हैं। अब जो अब टाइप्स ऑफ टेस्ट जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि फास्टिंग ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर है, A1C है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट करते हैं। तो ये जो डायबिटीज के जो लेवल है, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है ना हमारी, मतलब फास्टिंग टेस्ट जो होते हैं उसके नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताया कि अगर आप सुबह को बगैर खाए करते हैं तो उसका लेस देन 100 जो है ना वो नॉर्मल होता है। तो लेकिन अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है ना ओवर 100 to 125 up to 130 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज की स्टेज में हैं। तो अगर 126 से हायर है तो फिर आपको डायबिटीज डेफिनेटली है। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका 125 से ओवर जा रहा है, बिटवीन 200 है, दैट मीन यू आर डायबिटिक नाउ। अच्छा, जो रैंडम ब्लड शुगर है कि वो अगर लेस देन आपने कुछ खाया तो आपका लेस देन 140 है, दैट मीन यू दिस इज अ नॉर्मल ब्लड शुगर। और अगर 140 से 190 या 200 तक या 140 से 200 तक है फास्टिंग, मतलब खाना खाने के बाद जो आपने चेक किया जिससे रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट है, इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज स्टेज पे हैं। और अगर आपका ये जो हायर देन 200 है रैंडम ब्लड शुगर, अब आपने चेक किया आधे घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद चेक किया है खाना खाने के बाद, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ओवर 200 है, दैट मीन यू हैव अ डायबिटीज। You need to be concerned. You need to see your doctor and you need to have those tests done. A1 टेस्ट जो है वो A1C जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, A1C जो पिछले 3 महीने की आपके ब्लड शुगर का लेवल बताता है, पिछले 3 महीने का, वो ये है कि वो लेस देन 5.7% जो आपका अगर वो आए तो उसका मतलब है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपको डायबिटीज नहीं है। और अगर ये उससे अबव हो, बिटवीन 5.7 से 6.4 तक चला जाए, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज स्टेज पे हो। और अगर ये 6.5 से हायर हो, मतलब 7 हो, 6.5 से ओवर जो भी हो, मतलब 5 से जो ऊपर हो, उसका मतलब है कि आपको डायबिटीज है, फिर आपको कंसर्न होना चाहिए। आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको शुगरी ड्रिंक पे के, तो वो आपका टेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है और किस तरह अफेक्ट करती है शुगर आपकी बॉडी पे। तो वो जो 140 है वो नॉर्मल है, तो जो 140 से 200 है वो जो है नॉर्मल है, वो प्री डायबिटीज है। और अगर वो ओवर 200 है, दैट मीन इट्स अ हायर, so you have a diabetes, you have to be concerned about that. Okay, so how we manage these diabetes? अब इनको मैनेज कैसे किया जा सकता है? There are no cure for diabetes, but it can be treated and controlled. The goals of the managing diabetes are to ये कह रहा है कि भी आपके मतलब इसका कोई क्योर नहीं है. There is no cure for this disease. There is no cure for diabetes because you have to eat. You have to eat to survive. So think, what are you going to eat? It's going to convert into the glucose. It converts going to be glycogen. So that's your energy for your body. There is no cure for that. You cannot say, I'm not going to eat it. You have to eat something. But you can control it by not eating so many things and by making your life, shaping your life in a good form and focusing on your body and paying attention.
you can control this and you can reverse these problems. And it's up to you how you can reverse this. वो कहता है कि keep your blood glucose level as near to normal as possible by balancing food intake and the medication and activities. Activity is very must. Exercise is very must. You can see what you're eating it. You can control your food, which is so much carbohydrates, such as rice, potato, and the refined flour, which is like a white flour. You can eat like a brown bread. You can eat that. You can stop eating those sugary cookies and cakes and those the foods has lots of carbohydrates. You can control that. Some of the fruits are causing diabetes, such as orange and carrots, and these like the food and fruit which produces sugar. You can control with those. You can eat the yam. Yam is good for you. You can eat the brown bread. Brown bread is good too. If you have a diabetes, you can replace your carbohydrates with your little proteins. The protein which comes from like the nuts and from the pulses, like a दालें जो हैं, कुछ दालें जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें lentil हो गई और lentil है, ये प्रोड्यूस करती है. फिर किडनी बीन्स हैं, ये प्रोटीन को रिप्लेस कर सकते हैं, ये बीन्स प्रोटीन्स हैं. फिर उसके बाद ये है कि आप प्रोटीन्स खाने के लिए एवोकाडो है, वो भी प्रोटीन, और चिकन है, मीट है. रेड मीट तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन जो है ना आप मटन खाओ, मतलब उसमें ये है कि आप बकरे का गोश्त खाओ. प्रोटीन, ये सारी जो प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाले एनिमल प्रोटीन्स लो, फूड प्रोटीन्स लो, फ्रूट प्रोटीन्स लो, जितने नट्स हैं जैसे कि आलमंड है, बादाम है, और ये जो नट्स हम खाते हैं, पिस्ता है, और ये जो काजू है, ये है. लेकिन ये है कि इनको भी मॉडरेट अमाउंट में खाओ, क्योंकि अगर आप इनको ज्यादा खाओगे तो ये कोलेस्ट्रॉल भी हाई करते हैं. तो आपको प्रोटीन आप कार्बोहाइड्रेट्स में से थोड़ी सी ज्यादा प्रोटीन ले लें, जो कि वो हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी का काम करता है. तो आप अपनी जो प्रोटीन है थोड़ा हिस्सा उसका ज्यादा ले लें और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लें. आप उबली सब्जियां खाएं, आप ज्यादा सब्जियां खाएं और ब्राउन ब्रेड खाएं, क्योंकि जाहिर है एनर्जी की तो जरूरत है, लेकिन इसको मेंटेन किया जा सकता है. मेंटेन योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल एज नियर द नॉर्मल रेंज एज पॉसिबल. सो आपने जो फूड खाने हैं वो भी देखना है कि उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल तो हाई नहीं हो रहा. आपने उसकी स्टडी कर लेनी है कि मतलब ऐसे फैटी फूड नहीं हमने खाने, ऑयल कम करना है, घी नहीं खाना ज्यादा, पराठे नहीं खाने ज्यादा, इस तरह की चीजें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो नॉर्मल हो. ये जो 3 चीजें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, they just come like this. So they come, they are the beast, our body. So we have to see what is our lifestyle is, what we are eating, how we're exercising. We are not overstressing our body. We're not overstressing ourselves. Sometimes, emotional stress can cause diabetes too, which is like fear, anxiety, depression, these things. If you are emotionally down, definitely it's going to affect on your body system. And what you eat, it's going to go into the wrong way. Control your blood pressure, like I said, decrease or possible preventive development of the diabetes related health problems. So आपको अपनी बॉडी के जो मतलब कोशिश करनी है कि आप अपनी बॉडी को जो आपका सिस्टम है बॉडी का, उसको खराब ना करें, और उसको मतलब कि कोशिश करें कि हम इसको मेंटेन रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छी प्रॉपर स्लीप लें. अगर अब हेल्थी पर्सन को जो सोना है वो मतलब अगर वो 6 घंटे से कम सोता है ना, तो ये भी उसकी काज हो सकती है कि उनको ये चीजें, उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है. तो आपके लिए सोना भी जरूरी है. एटलीस्ट आप 7 to 8 आवर जो है ना वो आपकी अच्छी स्लीप होनी चाहिए, रात को आपको सोना भी चाहिए. तो फिर उसके बाद कहता है कि you hold the keys to managing your diabetes by planning what you eat. Like I said, what you eat the balanced diet, you exercise, take medication. If doctor prescribe you any medication, do not say, oh no, I'm not going to. You have to comply with your medication regimens too. Okay, so then you have to continuously going and frequently have your checkup done with your doctor. Stay with your doctor. And you study yourself too, because nowadays, we have Google's available. You can study, you can educate yourself too. So once that you educate, the other thing is that, we will talk about, and religiously, how we can control these things. Okay.
keeping your appointment with your healthcare providers, which is I said, what you do at home every day affects your blood glucose more than, so you have to be active in the homes too. Don't sit and watch TV all day. Do something, and socialization be good, very good है कि आप socialize करें लोगों के साथ, वो उससे आपकी जो thoughts हैं वो change होती हैं, आप एक दूसरे को educate कर सकते हैं. फिर इसका बताते हैं कि इसके जो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो फिर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि दिस इज द बीस्ट in our body which can destroy our autoimmune system, which can destroy our all vital organs, which is our vital organs. What are they? Our heart, our kidneys, all the organs in the body. This is the beast. ये जो है ना ये स्यूक है, इसको स्यूक कहते हैं, फंगस है. It's a fungus for our body organs. It's effect on all body because it's go through the blood. When blood vessels are affected by high blood sugar, then your heart's going to be damaged too, and your blood vessels going to be damaged too, because it's going to affect on your skin. Most of all, it's going to affect on you because all your body it needs a nutrition. Your brain cells need a nutrition. Your eye cell need a nutrition. When the high blood sugar goes into the muscle, like stay high, then it's effect on everything. It causes a disease like a retinopathy. It causes eye diseases. This is the complication of being high hyperglycemia. इसको कहते हैं hyperglycemia. Glycemia होता है कि शुगर का दूसरा नाम है glycemia. तो इसको हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिक. हाइपो में होता है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो ड्रॉप हो रही है. हाइपरग्लाइसीमिया कि आपकी ब्लड शुगर जो है ना वो मतलब आपके जिस्म में हाई रहती है. तो इसकी कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले ये है रेटिनोपैथी, जैसे मैंने आपको बताया कि आई डिजीज. All patients with the diabetes should see an ophthalmologist on regular basis because first it's effect on your visions. Okay. सुन रहे हैं आप मुझे सब? जी आ रही आवाज. अच्छा वो मेरा ना खत्म हो गया था. तो इसकी पहली कॉम्प्लिकेशन. दूसरी इसकी न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी, विच इज नेफ्रो का मतलब होता है नेफ्रोलॉजी. नेफ्रो का मतलब होता है किडनी. नेफ्रोपैथी होती है, इससे किडनी डिजीज होती है. यूरिन टेस्ट शुड बी परफॉर्म. आपको बार ब्लड इन्फेक्शन होता है. Regular blood sugar checks are also important because manage of the high blood pressure. High blood pressures को manage करो, ये आपको hypertension cause करता है जिसको high blood pressure कहते हैं. So आपका blood pressure check करना normal और sugar normal रहनी चाहिए क्योंकि it's essential for your kidney health too. You have your blood pressure checked at every visit with your healthcare provider, the American Diabetes Associations. Okay. So it can cause the kidney diseases. It can damage your kidney. You can go into kidney failure. आपके गुर्दे जो है ना वो फेल हो जाते हैं. जो बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है उनकी सबसे पहले इंडिकेशन ये है कि कोई अगर जिसमें प्रॉब्लम हो रही होती है तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपको डायबिटीज तो नहीं है. जब आपको डायबिटीज है तो उसको मैनेज करो. आपके तो बाकी तो चीजें उसके साथ रिलेटेड होती हैं. कोलेस्ट्रॉल जो इसको काज कर रही है उनको देखो कि आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हाई, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है. अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाओ. ये सिग्नल है आपके लिए कि आपको इससे मतलब ये चीजें हो सकती हैं. इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर है जो कि हमें डैमेज कर सकती हैं. तीसरी कॉम्प्लिकेशन इससे हमें नर्व डिजीज हो जाती है, न्यूरोपैथी. जैसे कि हमारे न्यूरोपैथी जब आप कहते हैं ना कि मेरे पाँव जल रहे हैं, मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मेरे हाथ नम है, मेरे पाँव नम है, मेरे पाँव ठंडे हैं, वो आपको आपकी नर्व
आपको मतलब नर्व प्रॉब्लम हो रही होती है, वो किस वजह से हो रही होती है कि आपकी ब्लड शुगर हाई है, उस वजह से हो रही है। इसलिए आपको आपके पाँव जलते हैं, आपकी टांगों में बेचैनी रहती है और आपके पाँव में नमनेस रहती है, पाँव में दर्द होती है, आपके मसल दर्द करते हैं, आपके हाथों में दर्द रहती है। तो आपके हाथ जो है ना उनमें जान नहीं होती है, आपके हाथों में ऐसे होता है कि जैसे टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है। ये जो सारी इंडिकेशन है, ये न्यूरोपैथी की इंडिकेशन है। और ये न्यूरोपैथी किस वजह से हो रही है? आपकी हाई ब्लड शुगर की वजह से हो रही है। चेक योर फीट एवरी डे फॉर रेडनेस। और ये जो पता है क्या होता है कि ये आपकी स्किन ड्राई कर देती है। जब न्यूरोपैथी होती है तो फिर आपकी ज़ाहिर हमारी जो स्किन है ये भी एक मसल है, इसको भी फूड की ज़रूरत है। जब इसमें मतलब वो ब्लड शुगर मेंटेन नहीं है तो हमारी स्किन पे भी इफेक्ट होता है। फिर आप ये देखें कि आप अपने पाँव चेक करें, आपके जो नेल्स हैं उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, आपके टो नेल्स में कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हो रहा। आपको चेक करना आपकी स्किन में कैलसिस तो नहीं हो रही, ड्राइनेस ज़्यादा तो नहीं हो रही, क्रैक्स तो नहीं हो रही, स्किन ब्रेक डाउन तो नहीं हो रही, आपके स्किन टिश्यू जो है ना वो तो नहीं खराब हो रहे, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तो नहीं हो रही। कैलसिस वो होता है कि जो पॉन्ड और कैलसिस होता है कि हमारी एड़ियों पे या हमारे पाँव के जो साइड पे, अंगूठों की साइड पे जगह है जहाँ पे बोनी एरिया है, वहाँ पे जो स्किन है ना वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, तो वो कैलस बन जाता है, पॉन्ड बन जाता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है और वो बहुत ही, क्योंकि टिश्यू जो है ना डेड हो रहे होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल ना करें डायबिटीज को तो फिर वो इस तरह होता है कि हमारी हड्डियों तक चली जाती है, फिर हमारी जो स्किन है वो खा जाती है या हमारी हड्डियों को गलना शुरू हो जाती हैं, मतलब हड्डियों को भी इफेक्ट करती है, जिसलिए वो बाज़ औक़ात जो है ना गैंग्रीन हो जाती है कि वो मतलब स्किन जो है ना डेड हो गई है, डैमेज हो गई है, ब्लड वेसल वहाँ मतलब न्यूट्रिशन जा नहीं रहे, तो उसके में होता है कि वो कभी आपकी टांग काट देते हैं, कभी पाँव काट देते हैं। तो इस तरह होता है कि ये सारी डायबिटीज की वजह से हो रहा होता है। ये हमारे जिस्म में ये कोई जादू टूना या दवाई नहीं है, ये जो सारी चीजें हैं मैंने कहना वो तो ठीक है, वो लोग करते हैं, इवल करते हैं, हम पे अफेक्ट होता है उनका, लेकिन ये है कि वो इसी तरह अफेक्ट होता है कि हमें डिजीजेस हमें काज होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें दुआ में रहना भी बहुत दुआ करते हैं खुदावंद के पास, जब हम ज्यादा जाते हैं तो फिर हमें जो है ना ये चीजें जो है ना वो हमसे दूर रहती हैं। उसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगी कि हाउ वी कैन यूज द सुपर फूड। नोटिस योर if you notice these things, you have to contact your doctor immediately. So the other long-term complication क्या हो सकती है? वो तो प्री मतलब मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशन है जिसको आप ब्लड शुगर की, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशन जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकती है कि मैंने आपको बताया कि रेटिनोपैथी की वजह से आपको काला और चिट्टा मोती है, जिसको काले मोती को ग्लाकोमा कहते हैं, चिट्टे को कैटरैक्ट कहते हैं, तो ये होती है। फिर आपको डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके दांत जो गम्स प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, आपको मतलब इन्फेक्शन होता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और तो और आपके मतलब मैरिज लाइफ में भी अफेक्ट करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मतलब इंसुलिन की अगर हमें ज़रूरत है तो इंसुलिन मैनेज करनी पड़ती है। तो इंसुलिन जो होती है 2 टाइप की होती हैं, एक तो लॉन्ग एक्टिंग होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग होती है। लॉन्ग एक्टिंग वो इंसुलिन होती है कि जो आपके जिस्म में 24 आवर जो है ना रहती है, तो वो ये जो कि ह्यूमन मेड इंसुलिन है और कुछ मतलब हमें इंसुलिन लेनी पड़ती है हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। शॉर्ट एक्टिंग वो होती है जो आप मतलब अपनी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए थोड़े थोड़े यूनिट लगाते हैं, अपनी खाने से पहले थोड़ा लगाते हैं या खाने के बाद लगाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी, हर बंदे की बॉडी के जो ना मतलब उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से उनको मतलब डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो ये होती सबको ही है। और फिर दवाइयाँ भी खानी होती हैं। तो इसकी प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट द डायबिटीज? तो इसके ये कि although diabetes risk factor like family history cannot be changed, हम ये तो नहीं चेंज कर सकते कि हम हमारी फैमिली में डायबिटीज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि हमारी फैमिली में है, मेरे मदर और मेरे फादर को था, मेरे ग्रैंडपा को था, मेरी ग्रैंड माँ तो मर्द की साइड से था, ये जो है ना ब्लड लाइन डिजीजेज हैं, ये जो है ना ये हमें डेफिनेटली होनी चाहिए। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए हर चीज़ में कि हमें भी हो सकती है, क्योंकि हमारे डीएनए में था ये।
There are other risk factors that you have some control over. You can control something, implementing some of the healthy life habits below can improve these modifiable risk factors and help to decrease your chances of the getting type 2 diabetes. वो कह रहा है कि eating healthy, don't eat too much carbohydrates, being physically active, stay active, दिमाग के साथ पे भी शार्प रहो और जिस्मानी तरीके पे भी शार्प रहो. lowering your stress जो है हमारी जिस्म का ये स्ट्रेस जो है ना ये बहुत सारी ये भी हमारा जानलेवा है. स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, ना बॉडी को इतना स्ट्रेस देना चाहिए, ना इमोशनली स्ट्रेस नहीं होना चाहिए हम पे. मतलब जैसे फियर नहीं होना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि जब हम हमारी मतलब सोच जब हम रूहानी तौर पे कमज़ोर होते हैं तो वो हमारी जिस्मानी चीज़ों पे अफेक्ट करता है. तो हमें स्ट्रेस को भी मॉडरेटली लेना है और इसको ज़्यादा नहीं लेना. अगर हो तो स्ट्रेस भी हो. लिमिटिंग अल्कोहल इंटेक, आप जो शराब पीते हैं उनको शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने वालों को भी डायबिटीज़ होती है. एंड इनफ स्लीप, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की स्लीप आप जो है ना इनफ स्लीप करो. अगर आप रात को नहीं सो सकते तो आप ड्यूरिंग द डे नैप लो. ठीक है, नैप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप नैप लेंगे उतनी आपकी बॉडी जो है ना आपकी बॉडी को थक जाती है, टूट जाती है. उसको रिस्टोर करने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, स्लीप करने की ज़रूरत. आपके ब्रेन को स्लीप करना चाहिए. जब आपका ब्रेन अवेक रहता है तो उससे एंग्जाइटी और प्रॉब्लम बहुत सारे शुरू होते हैं. तो हम अपने ब्रेन को भी रेस्ट देना होता है, वो सोने से और रेस्ट करने से, कम स्ट्रेस लेने से. अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग को क्विट करो. तो ये थी डायबिटीज. और अब मैं इसको बताती हूँ कि हमारे पास हम इसको मतलब हाउ कैन वी हील आवर बॉडी माइंड्स एंड healing our, so how God heal our body in minds. अभी मैंने ये स्टडी कर रही थी रात को, तो मैंने ये किसी का ब्लॉग था तो मैं, और ये जो ब्लॉग जो है ना ये हमेशा मैं भी यूज़ करती हूँ लोगों पे. मैं भी ये कहती हूँ कि आपके माइंड, बॉडी और सोल्स को अगर आप की हीलिंग नहीं है तो उसमें ये है कि आपको मतलब ये चीज़ें आपके लिए आप इनको हेल्थी नहीं रखते, आपका माइंड हेल्थी नहीं है, आपका मतलब सोचें हेल्थी नहीं है, तो आपको ये बीमारियाँ होने का अंदेशा है और आपको ये बीमारियां जरूर होगी. तो मैं आपको ये पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी ने लिखा है, मैं उसका पढ़ती हूँ. और उसका ये है कि भी आप हमें मतलब हम कहते हैं कि हम बहुत दुआ बंदगी करते हैं, तो दुआ बंदगी करने से बीमारी कंट्रोल नहीं होती. हाँ ज़रूर है कि अगर हम दुआ और परेशानी की हालत में करते हैं तो हमारे जिस्म पे हीलिंग नहीं आ सकती, हमारे दिमाग को हीलिंग नहीं होती, हमें पीस नहीं मिलता. हमें पीस जो है ना वो खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि वही कहता है कि मैं डीप पीस हूँ. जब हमारा जहन पीस में है, हम आउट ऑफ स्ट्रेस है, फिर कोई भी बॉडी जो है कोई भी बीमारी जो है ना अफेक्ट नहीं करती. अगर करती भी है तो वो खुद उस पीस में हील हो जाती है. तो उसका ये है कि मैंने पहले भी कभी मैंने शायद मेंशन किया था कि हमारे पास हेवनली मेडिसिन है जो कि बाइबल मुकद्दस है. हम उसको जब पढ़ते हैं तो उस मेडिसिन को या उस सुपर फूड को लेते हैं तो ये जो बीमारियां हमें होती हैं ये हमारे पे अफेक्ट करती हैं, ये करेंगी. लेकिन ये है कि इस चीज़ के इस सुपर फूड की वजह से जो है ना ये हमारी जो ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रेस कॉज करता है वो हील कर देती हैं. तो हमें हीलिंग यीशु मसीह के नाम में मिलती है. तो मैं ये आपको पढ़ देती हूँ कि उसने कहा कि God as the true healer has provided us with 4 key mechanisms to heal our bodies, our minds through his name, Jesus' name. During my diabetes lectures to various, he was the professor when he's the professor, he's talking about the diabetes. And he said, you probably not think that the professor they do not believe on the God, but we do believe on the God, and we use this mechanism. What are the 4 mechanisms to heal our body and our body, mind, and soul? He's saying that what he's saying that, he said, I usually ask the congregation what are the 4 keys mechanisms that the God uses to help us heal our bodies from diseases. अब उस पे वो ये कह रहा है कि मैं
हमें आंखें बंद करके खुदावंद के साथ बातें करने की जरूरत होती है। हम अगर कंटिन्यूसली उसकी दुआ को या उसके ज़बूर को या उसके कलाम को हम रिपीट करते रहें तो वो फिर हमें हमारे माइंड को हील करता है। जब हमारा माइंड हील होता है तो कोई भी जो है ना जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो हमारी बॉडी पे अफेक्ट नहीं करती। मुझे जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तू जब जाएगी टेस्ट कराने तो तू वहाँ मेरे साथ अपना लगाव रखना, मैं वहाँ जाके मैं डॉक्टर की सुनती हूँ लेकिन दिल से मैं दुआ कर रही होती हूँ, मैं दिल से यही रिसाइट करती हूँ। वो कहता है कि बाइबल वर्सेस को रिसाइट करो, दिल में ज़बूर गाते रहो, दिल में खुदावंद ये सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह जो है ना आसमान से सुने। अपना लगाओ जो है ना, अपना ज़ेहन जो है ना डेड ना करो, उसको खोलो, उसको खोल के तो आप अपने मतलब खुदावंद को याद करो। वो जो हीलर है, वो यीशु के नाम में जो हमारी हर बीमारी को हर मिरेकल हमारे लिए करता है। इसी वजह से मेरे हार्ट टेस्ट जो है ना बेशक पॉजिटिव आते हैं, लेकिन मैं दोबारा जाके करवाती हूँ तो मैं दुआ में रहती हूँ। और मैं अपनी सिस्टर को भी कहती हूँ कि जब तू जाती है तो वहां पे तू सिर्फ एक ही चीज रिसाइट कर कि गॉड कीप योर होली स्पिरिट एंड योर ग्रेस बी विद मी, कीप योर ग्रेस विद मी, pour down your grace, pour down your Holy Spirit onto me. When you say these things, when you recite Bible verses, when you open your brains and do not shut your brain from these outside people, when you go in the hospital, sometimes हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो परेशानी की वजह से हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो हम जब भी डॉक्टर के पास जाए तो हमारा बीपी हाई होता है। वो इसलिए हाई होता है कि हम डरे होते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें मतलब इन चीज़ों को मतलब कंट्रोल करना है। और इसीलिए वो कहता है कि भी मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जिसकी वजह से तुम हर काम जो है ना उसको कंट्रोल, हर चीज जो है ना हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, कंट्रोल कर, क्योंकि वो इसीलिए उसने हीलिंग दी है। तो उसके मैकेनिज्म, 4 मैकेनिज्म जो उसने बताया वो ये है कि मोस्ट ऑफ द कांग्रेगेशन वर एबल टू गेस वन ऑफ द मैकेनिज्म व्हिच इज द प्रेयर। वो कहता है कि बट दे आर अनएबल टू फिगर आउट दैट व्हाट इज अदर 3 आर। तो उस प्रेयर के साथ और भी जो टूल्स हैं और भी जो मैकेनिज्म है हमारी नेचुरल हीलिंग के, वो ये हैं कि I can tell you that the number of time I have heard people tell me that the God will answer their prayers when in fact God had already answered their prayers, but there wasn't listening to his message. हम प्रे तो करते हैं लेकिन खुदावंद का जो मैसेज है, जो उसके जो वादे हैं, हम उसको याद नहीं करते, हमें वो याद नहीं रहते क्योंकि हमारा जो ब्रेन जो डेड हो जाता है। As a result of the lot of people sit around praying waiting for the God to answer them when God had already given them the answer. So instead of always praying to the God, sometimes we should use meditations to listen to God and use our inner spirit. हमारी जो स्पिरिट है ना, हम खुदावंद के अल्फाज पे मेडिटेट करें, हम खुदावंद के वादों को याद करें। उस वक्त हम अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगाएं और उसको देखें कि उसने क्या क्या हमारे साथ वादा किया, हम उसको पुकारें। जब हम उसको पुकारते हैं जिसके नाम में ताकत है, पावर है, कुव्वत है, उसी पावरफुल नाम के वसीले से हमारी हाथ जो दुख तकलीफ जो है ना वो हम पे हावी नहीं होती है। इसी वजह से there are many simple ways to tap into the power of healing of your body and mind by reading scriptures from the Bible and tapping into your faith and inner spirit. हम मुंह से ना बोलें लेकिन हम अपने अंदर जो आंखें बंद करके डॉक्टर हमारे साथ बात करे, हम अंदर से यही दुआ करते रहें कि खुदावंद तू नहीं छोड़ेगा क्योंकि तूने कहा मैं नहीं छोड़ता, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो उसके जो प्रोमिसेस हैं हमारी हीलिंग के, उनको आप रिपीट करो, उनको मांगो, उनको दुआ करो, हमारे बाप पढ़ते रहो। क्योंकि एक औरत की टेस्टमनी थी कि उसकी माँ को कैंसर था, 93 इयर्स ओल्ड में, तो वो मर रही थी, तो वो दोनों बहनें ही अपनी माँ की टेक केयर करती थी। तो उन्होंने दुआ शुरू की दोनों बहनों ने कि उनकी माँ की हीलिंग हो जाए। तो उन्होंने जब दुआ की तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे पता बात करके क्या कहा कि तूने सिर्फ हमारे बाप पढ़नी है। हमारे बाप, उसने कहा कैसे, कहता इसको ही रिसाइट करती रहो बस। तो वो कहती थी Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as you have in heaven. That's it. क्योंकि उसकी मर्जी, आसमान पे कोई दुख तकलीफ बीमारी नहीं है, हेवन में कोई दुख तकलीफ बीमारी, तो जो उसकी मर्जी हेवन में हमारे पे है, जो ऑलरेडी उसकी मर्जी हेवन में हेल्थी है, वो जमीन पे हमारे लिए होती है। तो इसलिए इसको ही रिसाइट करते रहो। तो वो कहता है कि भी आपके ये जो टेस्ट भी नॉर्मल आएंगे, आपकी जो शुगर है वो भी चली जाएगी, आपकी सारे दुख तकलीफ चले जाएंगे। इसको हम नेचुरल तरीके से उस सुपर फूड से किस तरह कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ खानी तो ज़रूरी है, लेकिन मोस्ट लोग जो है ना वो दवाइयों पे, मैं नर्स हूँ, मैंने 30 साल हो गए, मैं दवाइयों पे बिलीव नहीं करती, मैं ये भी बता दूँ आपको। तो मैं ये नहीं कहती कि आप दवाई ना खाओ,
ये मेरी वजह है, आप खाओ अगर आप खा सकते हो, मैं आपको ये इंकरेज नहीं करती क्योंकि, लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा इंकरेज करती हूँ कि हमारे पास सुपर फूड है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं गो इंस्टेड ऑफ ऑलवेज प्रेइंग टू द गॉड समटाइम वी शुड यूज अ मेडिटेशन। वो कहता है मेडिटेट करो, खुदावंद के अल्फाज में मेडिटेट करो, अपना रूह कुदस मांगो, अपनी रूह को खुदावंद के साथ जोड़ो उस वक्त जब आप डॉक्टर के पास होते हैं। देयर आर मेनी सिंपल वेज टू टैप इनटू द पावर ऑफ हीलिंग ऑफ योर बॉडी माइंड, व्हिच इज आई ऑलरेडी सेड, when you get sick and end up into the hospital, we praise God for saving our live. हम डरते हैं, हम कहते हैं खुदाया रहम कर नहीं, उस वक्त खुदावंद के साथ बातें करने का वो ज्यादा टाइम होता है आपके पास कि आप उस टाइम में भी खुदावंद से, ये नहीं कि हमने अब दुआ कर ली है, रात को दुआ कर ली है तो बस काफी है। ठीक है, कुछ दुआएं हम करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं तो खुदावंद हमें हमारी दुआएं सुनता है, लेकिन कुछ कभी कभी हमें हर वक्त दुआ भी करते रहना चाहिए। We continue to ignore his message. We refuse to change our eating habits and lifestyle and follow the scriptures. Instead, we rely on men's drugs and the medication instead of God's superfood. वो कहता है कि हम कभी कभी हम डॉक्टर की दवाइयों पे रिलाई करते हैं कि हम इन पे जिंदा रहेंगे, बजाय इसके कि वो खुदावंद के सुपर फूड को खाएं। कि वो जो सुपर फूड है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये हेवनली मेडिसिन है। मेरी अगर कोई बात हो तो मैं ये तो अभी मैंने पढ़ा, लेकिन मैं इससे पहले मुझे रूह कुदस ने मुझ पे रिवील किया था कि ये जो बाइबल मुकद्दस है ये हेवनली मेडिसिन है। अगर मेरे भाई वगैरह कोई हो तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पास टाइम खुदावन ने दिया तो तुम बाइबल पढ़ो। जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो आपको हीलिंग आती है, आपकी बॉडी हील होती है। जब आपका माइंड हील होता है तो आपकी बॉडी भी हील होती है, और जो बॉडी पे वो बीमारी इफेक्ट कर रही होती है वो हील हो जाती है। वी ऑल्सो फेल्स टू यूज आवर ब्रेन्स। वो कहता है कि हमारा ब्रेन, जो मैंने कहा कि हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। पावर ऑफ नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, वो जब हम ब्रेन यूज करते हैं तो खुदावंद हमें विजडम भी देता है कि आप कौन सा फूड खाओ और कौन सा ना खाओ, और कौन सा फूड है जो खुदावंद आपको इतनी हिकमत देता है जब आप खुदावंद के साथ लगाव देते हैं कि आपको बता देता है कि हाँ ये जो फूड है ना ये काज कर रहा है, मुझे क्या कर रहा है। अब मेरे जो फेशियल रैश है मुझे पता है कि स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब मेरा स्ट्रेस कम डाउन होगा ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब मैं मतलब ओवर 50 हूँ तो जाहिर है इतना मैं नहीं कर सकती कि काम भी करूँ और स्टडी भी करूँ, और फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो जाहिर होता है। तो वो 5 मैकेनिज्म जो बता रहा है, जो मैंने अभी पहले बताया है कि वो प्रेयर्स है। नंबर 1 प्रेयर्स, नंबर 2 मेडिटेशन ऑन हिज वर्ड्स, ऑन हिज प्रॉमिसेस, रिमाइंड हिज प्रॉमिसेस, ask the Holy Spirit to come and talk to you and talk to him through the Holy Spirit. Call the Jesus, put your eyes on Jesus. Through his you can get it. Good God's foods. What is the God foods? Bible मुकद्दस उसका food है, super food है। Bible के अल्फाज super food है, उसकी जो wording है उस पे meditate करते रहो। Scriptures, the scriptures याद कर दो। Our brain, use our brain, ask for wisdom. And God healing in the Bible, अब अगर आप पढ़ें तो ये जो डिमेंशिया के पेशेंट है, कभी कभी मैं उन पे दुआ करती हूँ तो वो भी एकदम उनका दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं करती हूँ, हाँ मैं कहती हूँ कि ठीक है तू इनको ठीक कर, इनको ठीक करके इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप वर्सेस बाइबल से पढ़ें तो हमारे पास बहुत सारी बाइबल वर्सेस हैं जो हमें हीलिंग ब्रिंग करती हैं, और उसके प्रॉमिसेस हैं कि हम किस तरह इन बीमारियों पे हावी हो सकते हैं। So I hope you all learned today. If I have not explained well, you have access to Google. You can search yourself and study yourself and gain more knowledge and be educated and be wise. And most important, walk with the gods and just learn to, use his promises. And may God bless you, and his grace and the Holy Spirit be with you now. Amen. Forever. Amen.